Congratulations, Siddharth. I am proud of you. I have no word to express about that. You are not only students of DAV, but you always stood first, second, or toppers in quizzes, activities, or something like that. And last, you had a desire to study in Bangalore Law College, the best college of India, and you fulfill your dream. What are your secret of your success? Once again, congratulations. Thank you, sir. Sir, the one thing that particularly stood out for me was clarity of thought. So, from the very beginning, I feel that so in the previous video that you shot, you talked about action plan, belief in yourself. But for me, it was clarity of thought. So from the beginning, I knew कि अच्छा ठीक है, this is where I have to go. This is the course that I have to get in. So I cracked CLAT in 2021. I took 2020 as well, the 2020 examination. But उसमें मेरे को NLIU भोपाल, which is the currently fifth, generally people rank it at the fifth level, fifth rank college था, मेरे को मिल रहा था. But then I was pretty sure कि okay, this is where I have to go. This is because I knew I was capable of getting into an LSIU Bangalore. And so right from the beginning, my peers were preparing for boards examination. I knew that this is where I have to get into. My boards examination won't really help me much to get into the college of my dreams. So I knew where I had to focus. I knew where I had to go. And that is what really helped me at the end. So you always believe your potentiality and how to utilize it. And Bhopal, the case study, it is very learning experience. But you had to go to higher level, and that is Bangalore, and you achieved the target. So whole school, whole Hazaribagh, whole Jharkhandi, because you got the first position in Jharkhand in CLAT examinations, OBC rank first in India, and 38th rank in CLAT OBC, so general category. It's a not a easy job. Not any students of Hazaribagh till the time they have achieved, and he has created all the previous record or something like that. Congratulations. How many attempts you took to prepare these examinations? For me, it was 2 attempts. So first I appeared in CLAT 2020. The reason why I feel I could not really clear, I did clear, but I could not really get into NLSIU Bangalore was the fact that I was not really well prepared. I did not have the accurate. So this is something which my father used to tell me, and which is the story of Arjuna. So even Arjuna needed Krishna in Mahabharata to win. So you cannot even if you are capable, you won't be able to get to the place where you want to get into if you do not actually have the right guidance. So for me 2020 में मेरे को लगा कि शायद वैसी गाइडेंस नहीं मिली थी मेरे को, तो 2021 में आई वेंट टू रांची, आई गॉट द राइट गाइडेंस, एंड सो या इट वाज माय सेकंड अटेम्प्ट. Yes, I can understand about that. You used to discuss with you, and your class teacher Sampa Srivastava also used to tell about that everyday story or something like that, the progress, and that was you are very consistent right from the beginning. Okay, you are very consistent, and that is the word I'm always using, the perseverance, consistency, and concentration. You are very focused also. These are the mantras, and you are very focused on this achievement. So what is the contribution of your teachers, principals, and parents? It was not really an easy job, not really focusing on. I did prepare for my boards, but it was not an easy job to not really focus on boards, and when everybody is just all about कि boards में कितने नंबर लाने हैं, past paper solve करने हैं, उसमें it was not an easy job to focus on CLAT and not really focus on boards. वहाँ पर so Sampa ma'am was my class teacher, and she really, so I went to her and told her कि I still remember that day. I went to her and told her कि ma'am नहीं हो रहा, मेरे से दोनों काम नहीं हो रहा, and it is really getting difficult. She told me forget boards, focus on CLAT. So just by the fact that there is somebody, so I really regarded her a lot. By the very fact that there is somebody who believes in me really filled me with a lot of courage कि हाँ ठीक है, I have to do this now, because कि there are so many people behind me, so many people rooting for me कि मेरे को अब करना है. और उसके बाद
the constant support. And so sir, the morning assembly, the speech that you used to give, वहाँ पे it was for us in studying in the public school Hazaribagh, that morning assembly was a constant source of motivation. I still remember the first day of our humanities section, you came to our class, and the ABCDEFG, something that you discussed in the video, you also discussed there also. So वहाँ पर it was like every day you go to school, you get filled with motivation, you get filled with rigor, you get filled with energy, you come back, and then you start working on your dreams. So yeah, that was the constant source of motivation for me. And again, yes, obviously my parents were, so the decision of not taking NLI Bhopal and then going ahead with NSI was a very difficult one. My father told me, you just go ahead with it, तुम्हें जो करना है करो, we believe in you. And it is very much possible because it is a competitive examination. बहुत सारा सेल्फ डाउट आता है कि क्या हो पाएगा नहीं हो पाएगा, हम जहाँ जाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, क्योंकि NLI भोपाल छोड़ रहे हैं तो क्या उतना ही रैंक फिर से आ पाएगा या नहीं आ पाएगा. तो रोज़ शाम को आई यूज्ड टू कॉल माई फादर कि जब भी whenever I got filled with self doubt, I used to call my father कि पापा देखो मेरे को नहीं लग रहा है, नहीं हो पाएगा. And then he was the constant source कि ठीक है, you just keep going, you just have faith in yourself, you are capable. So yeah. Yes, you have rightly said, sir. Parents, teachers, a great role they have to play about that. And I always feel about that ki the students are lucky, are very fortunate, those who are listening, from parents also, teachers also. So it is very good thing, and motivational assembly speeches or some of the work help you. Thank you very much. Personally, I motivated the students and keep on motivating. Swati also said about the chocolate or something like that. Okay, so you are the best quizzer. I have learned about that. In most of the cases, even Newsbees, that is India Today conducted, and you are the Jharkhandi and you participated at the national level India Today quiz. That is the heritage quiz, and that is the intake quiz. You are always winner, and you are participants not only and winner of the state level, national. So somebody is telling about that, and at that time also ki sir is focusing and motivating to participate the quizzes, other activities, whether this will hamper their study. जनरल क्वेश्चन होता है कि क्विज में है, इधर है, कहीं सर के मोटिवेशन से वो ज़्यादा कहीं गलत तो नहीं कर रहा है, एकेडमिक्स में पूरा होना चाहिए. तो कहते थे उस समय, कई लोग आज भी कहते हैं बच्चों को कि तुम एक लाइन में देखो, केवल एकेडमिक्स. तो तुमने तो कन्वेंशन को तोड़ दिया. तुमने, स्वाति ने, तुमने, दीपक ने आज 2-2 बार पीटी क्वालिफाई किया, इस बार मेन करने जा रहा है दीपक, वो तो क्विज का था. इसको कैसे कहोगे न्यू जनरेशन को, नए लोगों को जो सोचते हैं कि बच्चों को केवल पढ़ाई, बस बुकिश नॉलेज और क्विजेज और इस तरह का एक्टिविटीज़ में भाग नहीं लेते हैं. तुमने तो एग्जाम्पल दिया है कि मैं इधर भी था, उधर भी था, एक्टिविटीज़ में भी था, एंड आई वाज टॉपर ऑल्सो. सो हाउ यू विजुअलाइज, हाउ यू से लाइक Uh, Quizzing is something that has always been very close to my heart. Even now in college, we were very close to beating IIT Madras in one of the India quizzes, but last moment pe, very good. IIT Madras also this time also. yeah, so this time we were very close. In the last round we could not. So for me, quizzing, so as rightly sir said, quiz, I think 7th 8th standard से मैं quiz करता था. And every day in the morning assemblies I used to say ki read newspapers and keep yourself updated with current affairs. Sir, I still remember 9th standard 10th standard में जो current affairs का होता था, and it was so grueling, the competition was so grueling. Nachiketa was my batchmate. Yes. And so there was always a race to get the answers right and get right them first. So I believe quizzing has played a huge role in shaping my personality. In terms of not just in terms of not just the confidence that it gave me, but also the inquisitiveness that it enshrined in me. तो उससे होता क्या था कि the reason why I could crack CLAT, so current affairs section plays a huge role, current affairs in GK section plays a huge role in CLAT. And so so a lot of my friends who were preparing alongside me used to face a lot of problems in grappling around the issues that were happening. द स्टैटिक पार्ट जो उसका होता था करंट अफेयर्स का, जीके का, तो मेरे केस में आई स्टिल रिमेंबर देयर वर लॉट ऑफ टाइम्स इन क्लैट मॉक्स जब स्टैटिक जीके हिस्ट्री वगैरह के सवाल आते थे, एंड आई यूज्ड टू गेट ऑल ऑफ देम राइट, एंड दे वर लाइक तुमने ये सब का पढ़ा
और मैंने वो सब कुछ स्कूल डेज में ही पढ़ रखा था। तो वो काफ़ी ह्यूज रोल प्ले किया। एंड participating in competitions, going to Mayo, going to Delhi, meeting all the different minds, it adds to your personality eventually. It adds to your personality. And so at NLSI Bangalore, sir, everybody there is either a debater, either a quizzer, or has done modern United Nations or something like that. And the the colors that these competitions add to your personality are very, very important. Yes. Academics will only take you to a certain place, but yes, after that, when you want to be the leader in terms of getting at the top of any field that you desire, it eventually comes down to all these aspects. If you can be either a good writer, you can be a good orator, you can be a good quizzer, whatever you want to be. You can even be good in sports. So anything just outside of your academic life will add colors to your personality. And the something that I mentioned, so because I had to take CLAT again to get into NSIU Bangalore, the indomitable spirit, the idea of not giving up, of fighting again and again. So the quizzes that I have participated in, obviously there are many success stories, but then there are failure stories as well. I could not win Mayo College Ajmer quiz for the first time I participated. They were the first two times when I participated, I lost there. It was the third time when I went there. I don't know, I just went there and I won the competition. So yeah, the self-belief that yes, I have it inside me, I can actually win, I can actually get where I want to get. So all of these you cannot learn in classrooms. You cannot learn in your academic life. You have to step out of your academic life. You'll have to participate in sports. You'll have to participate in competitions. You'll have to experience that trigger to get these skills. First of all, congratulations for defeating the IIT Madras, because you had the so that was the round. You got the second position in national level, and that kind of group in South India, and just congratulations, because you have the background and you have ऑलरेडी एक्सप्लेन, आपने खूब अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया. ये क्वेश्चंस हम लोग के पास आते हैं कि एक्टिविटीज़ में है, ये एकेडमिक ख़राब हो जाएगा, ये आ जाएगा. आपने उन बच्चों के लिए बहुत बड़ी एक काम करेगी जो हमेशा यही सोचते हैं कि इसने बता दिया पढ़ाई इधर मत जाओ, क्विज़ में मत जाओ, स्पोर्ट्स में मत जाओ. सो कोई भी एक्टिविटीज़ हो, अगर डिज़ायर हो तुमको कुछ अच्छा करने का, तो सिद्धार्थ एक ताज़ा उदाहरण है कि इसने क्विज़ के बल पर एक्सेल किया, उस इंडिया एशिया का बेस्ट कॉलेज में अपना एडमिशन कराया, उसमें क्विज़ का. तो एक्टिविटी से भागना नहीं है. कोई भी आपका जो आर्ट है, क्राफ्ट है, म्यूज़िक है, स्पोर्ट्स है, मत भागो. आज दुनिया जो है सफल है इसलिए कि उनके डिज़ायर के हिसाब से, केस स्टडी के हिसाब से उनको मिला है. अगर उनको मार के क्लीन करके क्रिएटिविटी को, कोई भी अचीवमेंट नहीं रहेगा. और इसने सही बोला कि टॉप में अगर लीडर बनना है, एक्सेल करना है किसी भी फील्ड में, तो आपके अपने इच्छा या क्रिएटिविटी को मत मारिए. तो क्विज़ इसका क्रिएटिव पार्ट था और उसमें इसको पैशन था. 2 बार मेयो से हारने के बाद भी नहीं हारा और तीसरा बार हरा दिया. दैट इज़ द जील कि माय डियर स्टूडेंट्स, यू माइट हैव लर्न अबाउट दैट. द लास्ट क्वेश्चंस, व्हाट सजेशन, फीडबैक और एनीथिंग यू वांट टू ऐड उन बच्चों के लिए जो क्लैट की तैयारी, इतनी टफेस्ट एग्जाम्सन, आजकल IIT क्लैट एक ही साथ चल रहा है, टफेस्ट है, उन बच्चों के लिए, खास करके झारखंड, हज़ारीबाग ऐसे पिछड़े जगह पर जहाँ की कोई उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बेंगलोर ऐसा, साउथ, इसके बावजूद भी कैसे बच्चे तैयारी करें और किस समय सीरियस होगा, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उन लोगों के लिए एक सजेशन तुम्हारी तरफ से जाएगा तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा. सो गिव सब सजेशंस टू द यंगर जनरेशन, दोज हु आर गोइंग टू प्रिपेयर दैट काइंड ऑफ क्लैट एग्जाम्सन. तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जर्नी बहुत डिफ़िकल्ट होगी. शुरुआत से ये चीज़ मान लेना कि तुम्हें तुम्हारी हर एक लाइफ के एस्पेक्ट पे ये जर्नी तुम्हें टेस्ट करने वाली है. दूसरी चीज़, शुरुआत अगर करनी है प्रिपरेशन की, तो सबसे पहले एग्जामिनेशन को समझो. पास से पेपर उठाओ और देखो कि पेपर एग्जैक्टली पूछ क्या रहा है. जब वो देखोगे तो रियलाइज़ होगा कि न्यूज़पेपर रीडिंग, नॉवेल्स रीड करना और जो रीडिंग स्पीड है उसका कितना बड़ा रोल है.
पूरा का पूरा पेपर एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड पेपर है, तो वहाँ पर रीडिंग का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो शुरुआत न्यूज़पेपर से करनी है, शुरुआत इस चीज़ से करनी है कि समझना है पहले एग्जामिनेशन मांग क्या रहा है, एग्जामिनेशन चाह क्या रहा है, उसके बाद फिर उसके अराउंड प्रिपरेशन आपको टेलर करना है। अब दूसरी चीज़, अपने आप को समझो, समझो कि तुम्हारी कमियां कहाँ हैं, तुम्हारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या हैं। मेरे लिए फॉर पर्सनली रीडिंग वॉज नॉट रियली अ हर्डल फॉर मी, बट देन वोकेबलरी वॉज, आई वॉज नॉट रियली गुड विथ वर्ड्स, तो मेरे को अपने वर्ड और वोकेबलरी पे काम करना पड़ा था। तो ये थ्रू आउट प्रिपरेशन तुम्हें काम आएगी कि हमेशा खुद को एसेस करते रहना कि तुम्हारे लिए क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तुम्हारे लिए क्या वीक पॉइंट है। तीसरी चीज़, मुश्किलें कई बार इतनी ज़्यादा आ जाती हैं कि कि लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया। कई बार ऐसा लगेगा कि रोओगे बहुत बार, कई बार इमोशनल ये ब्रेकडाउन होगा, लगेगा कि अब और नहीं हो सकता। मेरे लिए खासकर ये कुछ ज़्यादा ही लाइफ ने टेस्ट किया था मुझे मेरे प्रिपरेशन के टाइम पर। सब कुछ अच्छा चल रहा था, क्लैट 2020 दिया था मैंने, तो उसमें आई हैड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 519, और उसमें आई वॉज गेटिंग एन एल आई भोपाल इन ऑन वैकेंसी, बट बाई देन आई हैड ऑलरेडी डिसाइडेड ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप। आई टॉक टू माई टीचर्स, द मेंटर्स हु वर देयर, एंड दे सेड गो फॉर इट, जस्ट एन एल एस आई यू के लिए जो भी तुम्हें को लगता है, जस्ट टेक अ ड्रॉप। मैंने ले लिया एंड आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग। इट वॉज, ड्रॉप इज़ नॉट ए ईजी थिंग टू डू। सेकेंडली क्योंकि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी थे, वो भी पैसे भी जा चुके थे, तो वो भी था कि नहीं इस बार तो करना ही है, दूसरा तो कुछ ऑप्शन है नहीं, वो भी दिमाग में चलता रहता है हमेशा। और उसके बाद जब प्रिपरेशन चल रही थी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, ऑल इंडिया मॉक्स में बहुत अच्छे सिंगल डिजिट रैंक्स आ रहे थे, सारे ही इनफैक्ट जितने कोचिंग के थे सबके ऑल इंडिया मॉक्स में सिंगल डिजिट रैंक आ जा रहे थे। बट एग्जैक्टली मेरे लिए एग्जामिनेशन के एक मंथ पहले मेरे को, उसमें कोविड का सेकेंड वेव चल रहा था, बहुत बुरा सिचुएशन था थ्रू आउट द कंट्री, और मेरे को भी कोविड हो गया था। आई वॉज इन रांची बैक देन, और आई वॉज लिविंग ऑल बाई माई सेल्फ। द रीज़न वाई माई पेरेंट्स वर ऑलवेज पेस्टरिंग मी कि ठीक है हम लोग आ जाते हैं, बट मेरे को पता था कि मेरी मम्मी सर उनको थोड़ा एलर्जी का प्रॉब्लम है, ये सब है, तो मुझे पता था कि मैं तो किसी तरह से हैंडल कर लूँगा, वो नहीं कर पाएंगे। मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं आई एम फाइन बाई माई सेल्फ, पर उनको भी शायद रियलिटी पता नहीं थी कि मैं कितना मुश्किल से रह रहा था। मुझे मतलब आई यूज्ड टू वेक अप, खाने का रखा हुआ है टेबल पे बट एनर्जी नहीं है, बर्तन साफ़ करने पर एनर्जी नहीं है, सो रहा हूँ बस। आई स्टिल रिमेंबर एक बार ब्रश करने को उठा एंड आई फेंटेड। तो वो सब कुछ खुद से हैंडल करा, कोविड का सब कुछ रिकवरी हुई। और जब सब, और रिकवरी होने के बाद क्या हुआ, जब रिकवरी फेस चल रहा था, तो एक होता है ब्रेन फॉग होता है आफ्टर कोविड, कि इवन समथिंग दैट यू नो दोबारा दिमाग चलता ही नहीं है। तो एक पॉइंट था जब मैथमेटिक्स एक जो सेक्शन है हमारे क्लैट में, उसके ये सम्स बस देख करके हो जाते थे मेरे से, और एक पॉइंट आ गया जब सिंपल मल्टीप्लिकेशन में मिस्टेक्स हो रहे हैं, ऐसे इस पॉइंट पे आ चुका था। उससे रिकवर कर ही रहा था कि माई ग्रैंड मदर पास्ट अवे, और इट वॉज अ ह्यूज इमोशनल बैगेज फॉर मी, कि मेरे को लगा कि यार ये तो आई वॉज नॉट रियली प्रिपेयर्ड फॉर इट। अब इससे इससे एक तो मेरे को इतना बड़ा हर्डल मिल गया, इतना बड़ा ब्रेक, एक बैक लग गया मेरा, अब दोबारा से ये चीज़ हो रही है। और माई ग्रैंड मदर वॉज वेरी वेरी क्लोज टू मी, और उस समय आई डिड नॉट हैव द ऑप्शन टू गो कम बैक टू हज़ारीबाग, क्योंकि सेकेंड इन्फेक्शन का भी चांस था। तो आई वॉज ऑल अलोन बाय माई सेल्फ, और उस इमोशनल को हैंडल करना, मैं पढ़ाई कर ही नहीं पा रहा था। तो बैक देन माई टीचर टोल्ड मी, ही इज़ इन दिल्ली राइट नाउ, ही टोल्ड मी दैट लुक, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेज द प्रॉब्लम दैट यू हैविंग, कि ठीक है ये सब कुछ हो रखा है, एंड दिस विल टेक टाइम, द इमोशनल ब्रेकडाउन दैट यू हैविंग, दिस विल टेक टाइम, बिकॉज कि वो इमोशनल प्रोसेस है, वो तो लगेगा ही तुम्हें समय। तो पहली बात तो इसको एक्नॉलेज करो। दूसरी चीज़ है, ही सेड कि नॉट लॉट ऑफ पीपल आर एबल टू क्रॉस दीज थिंग्स, नॉट लॉट ऑफ पीपल आर एबल टू रिकवर फ्रॉम दीज थिंग्स, तो ओनली डिवाइन, आई स्टिल रिमेंबर हिज वर्ड्स, ही वाज लाइक ओनली डिवाइन इंटरवेंशन कैन सेव यू। तो आई पर्सनली वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, तो I went to him and I cried all night, sir. I still remember. I cried all night. Yeah, I don't think I'll be able to achieve. And why is this? All of this is happening to me. मैं क्या करूँ? मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? इतना सब कुछ प्रिपरेशन, सब कुछ वापस लाइन पे ले आया था. ऑनलाइन रैंक बहुत अच्छी चल रही थी. लग रहा था सब कुछ इस बार तो क्रैक कर ही लूँगा. तो मेरी क्या गलती थी? मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? ये सब सवाल गूंजने लग गए थे. लग रहा था कि शायद इस बार सेकेंड ड्रॉप लेना पड़ जाएगा. मेरे से नहीं हो पाएगा. बट फाइनली धीरे धीरे करेज आ गई. खुद को गैदर किया कि नहीं, इस बार तो करना है. एंड आई जस्ट रूटिंग कि किसी तरीके से एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि अगर पोस्टपोन नहीं होता तो आई वुडंट हैव क्रैक्ड इट. तो पोस्टपोन हो गया एग्जामिनेशन, मेरे को टाइम मिला, फिर से सब कुछ शुरू से शुरू करा. सब कुछ उस एक महीने में. मेरे जो बाकी दोस्त थे सर, क्योंकि प्रिपरेशन बहुत लंबे समय से चलती आ रही है, तो आखिरी मंथ में तुम बस रिवाइज़ करते हो जो भी कर रखा है. मेरे लिए सिर्फ रिवीजन नहीं था, मेरे लिए सब कुछ शुरू से शुरू करना था. तो मेरे को उस समय भी 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे एफर्ट डालना पड़ रहा था. और फिर फाइनली एग्जामिनेशन जब का डे था, तो एग्जामिनेशन डे के दिन भी सर बहुत प्रॉब्लम्स आई.
मेरे को याद एग्जामिनेशन सेंटर में जाने से पहले मेरा पेन खो गया था, मेरे पास पेन नहीं था, और एग्जामिनेशन हॉल में मेरे ही जो क्लासरूम था, मेरा जो क्लासरूम था एग्जैक्टली उसी क्लासरूम में 7 मिनट्स के लिए पावर कट हो गया था। बहुत बारिश हो रही थी रांची में उस दिन, मेरे ही क्लासरूम में, बस बाकी क्लासरूम में नहीं। एंड गॉड वॉज टेस्टिंग मी टिल द राइट टिल द एंड, मेरे पेशेंस को, मेरे कामनेस को, एग्जामिनेशन हॉल में कैसे काम रहना है, खुद को कंट्रोल रखना है कि मेरे से तो कुछ, क्योंकि 7 मिनट्स के लिए पावर कट हो गया, आई कैन नॉट रियली डू एनीथिंग अबाउट इट। तो लास्ट तक यू विल बी टेस्टेड, लास्ट तक तुम्हारे स्पिरिट को, तुम्हारी करेज को टेस्ट किया जाएगा, बट जस्ट डोंट गिव अप, हैव क्लैरिटी ऑफ थॉट, खुद पे बिलीफ रखना कि आज सब कुछ है, पर अगर कल सब कुछ नहीं भी रहेगा तो दोबारा से सब कुछ बना लेंगे। खुद पे विश्वास रखना, एंड यू विल ऑब्वियसली एक्सेल इन वट एवर फील्ड यू वांट टू। Thank you, Siddharth. And just your story is just like I recalling the book written by Dana Zohar and Jan Marshall, and that is the ability to face the challenges and adversity of life. A real example, Siddharth is the real example after COVID. So how he faced the challenges, even the simple story of 7-minute power cut or something like that pain he lost. So this is the story, but he was built, he was meant for this, cracking that kind of toughest examinations. You believed yourself, and always at the quiz time also you defeated 2 times at Mayo, but last you defeated. So न हारने की झील, ये नए बच्चों में एक मैसेज इसने दिया कि थोड़ा टफ माइंड लेके चलना पड़ेगा। क्लैट इज़ नॉट इजी जॉब, थोड़ा सा प्रिपरेशन, कंप्रीहेंशन, इंग्लिश न्यूज़पेपर, प्रैक्टिसेस, दिस विल हेल्प द टू क्रैक द क्लैट एग्जामिनेशंस। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू एंड आई एक्सटेंड माई गुड विशेस। जो भी टीचर्स, पेरेंट्स, जो भी स्टेक होल्डर तुम्हारे जो हेल्प किए हैं, मैं उन सबको भी कंग्रेचुलेसन, आई पे माई स्पेशल थैंक्स। एंड तुम्हारा स्टोरी अगर झारखंड में पहला ये स्टेट टॉपर ही नहीं हुआ, ऑल इंडिया जनरल कैटेगरी में 38th रैंक एंड फर्स्ट पोजीशन ओबीसी में पूरे हिंदुस्तान में टॉप आना, इनक्रेडिबल, इंडोमिटेबल स्पिरिट, एपीजे अब्दुल कलाम का जो कहते हैं न हारने की झील, एंड एबिलिटी टू फेस द चैलेंजेस एंड एडवर्सिटी। लाइफ वही है, और देन जितने चैलेंजेस आएंगे, धाराओं के साथ तो सब लोग चलते हैं, धाराओं के साथ तो सब लोग चलते हैं, धाराओं के विपरीत जो तैरते हैं वही लीडर हैं। क्योंकि टिमिड होके समाज में पेरेंट्स पकड़े हुए हैं, इसने माँ को नहीं बुलाया। एक केस स्टडी है कि वो तो और एलर्जिक है और परेशान हो, ये खुद परेशानी से, लेकिन हार नहीं माना। और जो हार नहीं मानते हैं, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। एक अब्राहम लिंकन कहते हैं, बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, अनलेस और अनटिल यू क्विट यू आर नॉट डिफीटेड। सो विद दीज वर्ड्स वंस अगेन कंग्रेचुलेशन, I am proud of you, and I am sure, I am definitely, this video will help the coming generation, young generation, and they will prepare accordingly. Thank you very much.